Okay, let's start. Good afternoon, all again. Today we'll continue with the chapter that we were doing. We were discussing about chapter on online transactions, and we have done railway reservation system and how to handle those kind of things. We have done. Today we are going to start with the next topic, which is e-commerce and e-governance. In e-governance, basically, uh, we access the services from the government side with the help of technology. So before startup, I'll just take up the attendance. Okay, so I'll quickly come to the screen first of all. Now, as you can see, the topic name is e-governance, and okay, so let's start with this. E-governance or electronic governance is the use of some kind of electronic media like ICT tools, and the government provides the services to the citizen of the country. Or one more thing is that the citizens, they can access the services of the government, and then they can respond to the government. Now ICT tools में क्या क्या आता है? ICT tools में सबसे common चीज है internet, right? So using internet we can access certain services of the government. Then some other things, like you can access the services through local area network. Now that applies to the cities, like the local cities in Kapurthala we people are living. So in Kapurthala we can access the network of Kapurthala district administration, and then we can access the services of the government, the state government or the local district government. And some other things are also there, uses of mobile. Using nowadays mobile is a very common thing, and we know that all sort of things are available with us in the form of mobile apps. तो गवर्नमेंट की बहुत सारी मोबाइल ऐप्स लॉन्च होती हैं. आप उन ऐप से गवर्नमेंट की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो, राइट? सो एटसेट्रा, दीज आर ऑल डिफरेंट आईसीटी टूल्स. इसमें कंप्यूटर्स भी आ जाएंगे, लैपटॉप भी आ जाएंगे, और भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, दैट all comes into this effect, right? Now, how these services are accessible to us, on what kind of services we have basically. जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, right? These all services are online. You just have to fill up one page online on the website available of the government, and then your birth certificates and death certificates can be generated or easily. हमने रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का हमने लास्ट टाइम किया था. दैट वाज IRCTC. IRCTC was the railway department, tourism and catering department. So उस उनकी जो वेब पोर्टल है, from there we can book the tickets, railway tickets, right? So this is also one sort of e-governance, because यहाँ पे government organization है. Indian Railways is a government organization which is providing services to us to book our tickets online. ऐसे ही और भी applications हैं, और भी resources हैं, like RTI applications you can submit. RTI tools, I have given example also that RTI is a very handy tool, because if you are not getting
you want to get some information from any government department, you can just put an RTI application to that department, or it is mandatory for that department to send you the details within some stipulated time given. ठीक है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, और उनको दे आर टाइम बाउंड, उनको टाइम, कुछ टाइम लिमिट होती है, I think 21 days or whatever. Within that time, they have to send you the information. They will send you. This is the RTI Act, right? So ये भी एक तरह की RTI ऑनलाइन सर्विस है, right? So apart from this, many of the services are there where you can pay the bills, like your electricity bills or water sewage bills. ये सारे हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं. ये सब जो सर्विसेज हैं, ई गवर्नेंस का पार्ट है. Right now, these services comes in two categories. One is to provide information to citizens, and second is where some online services are also provided. तो ये दो तरीके की कैटेगरीज बनती हैं ऑनलाइन ई गवर्नेंस की. इसमें एक तो है कि सिर्फ जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करती है, राइट? उसमें जो सिटीजन है वो गवर्नमेंट से कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर सकता. तो एक ये कैटेगरी है. और दूसरी वो कैटेगरी है जहाँ पे सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट से कुछ सर्विसेज के लिए दे कैन सेंड अ मैसेज, दे कैन सेंड ए ईमेल, दे कैन पुट अ रिक्वेस्ट ऑल्सो. ठीक है, तो ये दो तरह की कैटेगरीज हैं ई गवर्नेंस की. Now before we start up with this, we'll just go through what all initiatives were taken by Indian government, how e-governance started in Indian government. इंडिया में 1987 में Indian government, they have introduced or launched one NIC net kind of thing, right? This was one type of network, right? It's a network which is national satellite based computer network. एक पहला network बनाया था 87 में, जहाँ पे जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे उनको इस नेटवर्क में जोड़ा गया, राइट? एंड लेटर ऑन, एट लेटर स्टेजेस, उन्होंने क्या किया कि इस नेटवर्क को इंक्रीज किया, राइट? और देयर वाज ए प्रोग्राम कॉल्ड एज DISNIC, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. इन्होंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे कंट्री में उन सबको कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू इस नेटवर्क में जोड़ा, राइट? तो इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट सर्विसेज जितनी भी सेंट्रलाइज थी पहले, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंच गई, राइट? So in 1998 the NIC net was extended to the state and district headquarters also. So 1990 में जाके सारा जो नेटवर्क था ऑल ओवर इंडिया में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर दिया गया. सो इससे बाद में कंप्यूटराइजेशन इंक्रीज होती गई, कनेक्टिविटी बढ़ती गई, इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ती गई. तो इससे गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव लिया और फिर गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज जो थी वो इन नेटवर्क्स के थ्रू लोगों को देनी शुरू कर दी गई, राइट? So there was a plan which was started called as National E-Governance Plan, right? This was initiated by Department of Electronics and IT, Information Technology. IT is the name of the organization, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है. और ये और एक और ऑर्गेनाइजेशन थी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस. ये दो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे जिन्होंने ये प्लान लॉन्च किया, NEGP, और ये 2006 में लॉन्च हुआ था. उसके बाद ई गवर्नेंस की प्रोसेस जो है बहुत कॉमन कर दी गई, सो दैट पीपल कैन एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली विदाउट एनी मिडलमैन. ठीक है, तो इसमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं, बिकॉज हमें नॉर्मली किसी गवर्नमेंट ऑफिस से हमें कोई सर्टिफिकेट चाहिए या फिर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, देन वी हैव टू गो टू दैट ऑफिस, एंड देन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्राइब की प्रॉब्लम आती हैं, दे यू हैव टू पे सम मनी टू सम ब्रोकर और वो हमारा काम करवा के देता है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स इन सब इनिशिएटिव्स की वजह से ख़त्म हो गई, राइट?
Now coming to what all different e-governance sites which are available for us, इसमें NEGP अभी हमने बात की, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो था, ये एक वेबसाइट है जिसमें आप इसके बारे में, ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ सकते हो कि क्या उसके मतलब। दिस इज़ 1-to-1 ओनली, मतलब इसमें कस्टमर पूछता नहीं है, इसमें कस्टमर सिर्फ एक रिक्वेस्ट ऑप्शन होती है, अदरवाइज दे विल जस्ट गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्लान कि ई गवर्नेंस इंडिया में कैसे चलती है। ठीक है, सम मोर ई गवर्नेंस ऑप्शंस आर आल्सो देयर, जैसे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है, ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स है, सिटीजन सर्विसेज है, बिजनेस सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स है, R&D in e-governance है। So these are all different categories of the government, that initiatives by the government taken till now. तो ये सारी सर्विसेज हम लोग एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के थ्रू, राइट। नाउ सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स हैज आल्सो टेकन द इनिशिएटिव्स, उन्होंने भी ई गवर्नेंस के अपने पोर्टल्स बनाए हुए हैं। जैसे पंजाब का भी अपना एक ई गवर्नेंस पोर्टल है, जहाँ पे आप एरिया ऑफ एग्रीकल्चर के लिए है, टैक्सेस पे करने हैं तो उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है, राइट। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑनलाइन पोर्टल है, लैंड रिकॉर्ड्स का है, फर्द कढ़ानी होवे देयर इज एन ऑनलाइन पोर्टल, आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाओ, जस्ट मार्जिनल सी फी पे करनी होती है और आप वो PDF फॉर्म में आपको किसी जगह की वो दो फर्द है वो मिल जाएगी। फर्द इज बेसिकली द लैंड रिकॉर्ड्स, राइट। So many municipalities, like I was telling you, bijli the bill, pani the bill, sewage the bill, all such things can be paid easily over here, right? Police, road transport, treasuries, so all these are the government initiatives, right? Now talking about some of the important e-governance sites of India, so सबसे पहले इन्होंने दी है india.gov.in. This is the national portal of India. This is basically a place where you can find all sort of information services provided by different government departments. तो ये एक ऐसा सोर्स है, एक सिंगल विंडो एक्सेस है, जहाँ पे आप पूरे इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं या जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट हमें देती हैं उनके बारे में जान सकते हो, ठीक है। और इट इज़ नॉट basically not one department, there are all different departments that comes under country's government, or the state government or the district government। सारी की सारी सर्विसेज आपको यहाँ से, उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें नेशनल ई गवर्नेंस प्लान यू कैन एक्सेस, जितने भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है, राइट। Second one is the Government of India web directory. Now this is quite important. Directory.nic.in, this is the name of the website। और डायरेक्टरी में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिलेंगी कि गवर्नमेंट वेबसाइट के अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, और ये नॉट इवन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स इन द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ ऑल्सो इन द यूनियन टेरिटरीज एंड जुडिशरी, लेजिस्लेचर, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की कॉन्टेक्ट डिटेल्स यू कैन गेट फ्रॉम हेयर, राइट। It provides the information about the various sectors like education, agriculture। तो जितने भी sectors you can see here, नीचे देखो आप, सब sectors जितने भी हैं उन सब के बारे में आपको information यहाँ से मिलेगी, and we'll get the contact details of each and every department। Like if you can see, यहाँ पे ये होम पेज है, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन, वाइस प्रेसिडेंट की, एंड ऑल दोज स्टेट गवर्नमेंट्स की, पार्लियामेंट एंड लोकसभा, राज्यसभा एंड अदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जुडिशरी की जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उनकी सबकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, राइट। सी ऑल सेक्टर्स आर देयर।
all government sectors, agriculture, animal husbandry, art and culture, likewise all sectors, all government departments, उन सब के आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी, right? Likewise, there are various other websites, so you can explore all such kind of websites easily. Just simply go to Google and search, you'll find a lot of e-governance sites. Fine. So, if you want to learn about e-governance, there is a hyperlink given over here. ये भी government का ही initiative है, government की ही एक e-governance portal है, एक website है जिसके अंदर e-governance के बारे में दिया हुआ है कि इंडिया में कौन कौन सी e-governance sites जो है वो चलती हैं, right? Now we'll jump over to the next topic, that is online shopping and bill payments. Uh, we all know that online shopping is a part of e-commerce application where we can purchase the goods, we can purchase the services, and that too, the shopping and the services that you purchase can be purchased only if you have internet connection. You need a device for accessing all the services. जितनी भी हमारी डे टू डे आइटम्स जो हमें ज़रूरत पड़ती है, all such things can be easily bought like books, TV, mobile phone, dresses, shoes, jewelry and all, right? So first of all is कि online shopping के फ़ायदे क्या हैं? What are the benefits of it? They are useful in many situations. कौन सी situations? Customers does not have enough time to visit a store. कस्टमर के पास टाइम नहीं है, ठीक है, वो स्टोर पे नहीं जाना चाहता या नहीं जा सकता, तो that person, that customer can easily access the services. They can shop the things using certain online websites available, right? And sometimes the store that you want to access, like if you want to buy certain things which is not available in your city, तो आपको सिटी से बाहर जाना है तो आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, ट्रेवल एक्सपेंसेस पड़ेंगे, तो उन सबको अवॉइड कर सकते हैं, आप अपने घर पे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, राइट? सो मनी स्पेंट इन ट्रैवलिंग टू द स्टोर और पार्किंग दी कार, ये सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, राइट? And sometimes the product that you want to buy is not available in your local market, then you can access these kind of services, right? And one more way is that if you want to send a product to your friend, you can do online shopping and provide the receiver's address. आपने किसी फ्रेंड को कुछ प्रोडक्ट सेंड करना है, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग में जाके उस फ्रेंड का रिसीविंग एड्रेस डाल दो तो उसको वो डिलीवर हो जाएगा, राइट? And you do not have time during the shopping hours. Shopping hours is the normal shopping hours. जैसे मुझे रात को 12 बजे शॉपिंग करनी है, तो that cannot be done physically. बट हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग ऑप्शन है जो एनी टाइम एनीवेयर ऑप्शन है, यू कैन बाय द थिंग्स एनी टाइम एनीवेयर, सो देयर इज नो फिक्स शॉपिंग आवर्स अवेलेबल टू अस. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं. नाउ ऑनलाइन शॉपिंग आल्सो हैज बार्गेन ऑफर्स. बार्गेन ऑफर्स मतलब आपको डिस्काउंट ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं, तो दैट यू कैन अवेल, वो भी एक अच्छा फ़ायदा है. Some online stores they allow customers to rate their services and item. तो कई बार आप जैसे ही कोई स्टोर एक्सेस करते हो या कुछ सर्विस एक्सेस करते हो, तो वो जो कस्टमर्स को ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रेटिंग करने के लिए बोलती है, और रेटिंग का फ़ायदा क्या होता है कि उसमें भी आपको डिस्काउंट ऑप्शंस अवेल हो सकते हैं, राइट? So you can also know about the popularity of items. Like if you want to purchase certain things, आप उसकी रिव्यूज चेक करो, उस रिव्यू में लोगों ने कमेंट्स किए होंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है. उन रिव्यू से पता लगता है कि भी वो पॉपुलर जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसकी क्या पॉपुलैरिटी लेवल है और उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलेंगी. Then apart from this, there are different kind of paying options, like you can pay the money through credit cards or debit cards,
and you can also go for cash on delivery option. And nowadays we have EMI options also कि आप ऑनलाइन वहीं पे EMI जनरेट कर सकते हो। तो आपने कोई चीज़ महंगी चीज़ खरीदनी है तो उसको आप EMI में पार्ट्स में पे कर सकते हो मंथ वाइज, और वट एवर वे इट इज़ अवेलेबल देयर। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे ऑनलाइन शॉपिंग के। नाउ कमिंग टू हाउ दिस थिंग वर्क्स, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे काम करती है। हाउ डू वी डू इट, कैसे करना है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन एनी ऑफ द शॉपिंग साइट where you want to shop, like Flipkart or Amazon, any kind of site you can open up. If you want to just want to see the products, you can go and simply browse the product। आप browse करो, उसमें search करो, ढूंढो अपने प्रोडक्ट को। एंड इफ यू वांट टू बाय देन यू कैन क्रिएट योर यूजर अकाउंट। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब मोबाइल से हम लोग एक्सेस करते हैं तो मोबाइल में व्हेन यू डाउनलोड दैट ऐप जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग अवेलेबल हो, जैसे अमेजन की डाउनलोड करते भाई ये अपना माइक ऑफ कर दो जिसका भी है। So when you want to buy certain things from any of the shopping site, तो अगर आप मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हो तो ऐप में क्या होता है कि जब आप ऐप डाउनलोड करते हो देन फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। आपको एक अकाउंट रजिस्टर करना पड़ता है। आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करोगे, आपको OTP आएगा, आपका एक यूज़र नेम और पासवर्ड बनेगा। मोबाइल्स में जनरली यूज़र नेम पासवर्ड ऑटोमेटिकली बन जाता है जीमेल से अगर आप एक्सेस कर दो तो। अगर आप कंप्यूटर पे रजिस्टर कर रहे हो किसी शॉपिंग साइट को तो देयर यू नीड टू क्रिएट अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड फर्स्ट। और ये एक अच्छा बेनिफिट भी है कि जब भी आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो गो थ्रू सम ऑथराइज साइट्स, उसमें अपना यूज़र नेम पासवर्ड बनाओ। यूज़र नेम पासवर्ड को लॉगिन करने के बाद ही आप परचेज कर सकते हो। उसमें फ़ायदा भी यही है कि सिक्योरिटी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है कि आपके जो जो भी क्रेडेंशियल्स आपने वहाँ पे भरे हैं, जो भी परचेजिंग आपने की है वो इंफॉर्मेशन कहीं और पास ऑन नहीं होती। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट लॉग इन इनटू द अकाउंट यूजिंग योर यूजर नेम पासवर्ड, देन यू कैन सिंपली गो विद द परचेज ऑप्शन एंड देन यू कैन लॉग इन में भी कई तरीके के ऑप्शन हैं। लॉग इन में अगर आप फेसबुक से लॉग इन करना चाहते हो यू कैन लॉग इन थ्रू द फेसबुक पेज। इफ यू वांट टू लॉग इन थ्रू द जीमेल अकाउंट दैट इज आल्सो देयर। और अगर आप किसी और ईमेल आईडी से या पासवर्ड क्रिएट करके उसको लॉग इन करना चाहते हो तो वो दैट इज आल्सो देयर, राइट। सो लॉग इन विद दिस देन सर्च फॉर द थिंग्स। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि हर ऐसी शॉपिंग साइट में एक शॉपिंग कार्ट या शॉपिंग बास्केट ऑप्शन होता है। शॉपिंग कार्ट और बास्केट का मतलब है कि यू कैन प्लेस सर्टन आइटम्स इनटू दैट कार्ट। सो उसमें फ़ायदा क्या होगा कि मान लो आपने 3-4 चीज़ें खरीदनी हैं तो आप सबको एक साथ कार्ट में डाल दो सेलेक्ट करने के बाद। फिर बाद में व्हेन यू गो टू कार्ट एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन पे। और उससे क्या होगा कि आपको एक ही बार में सारी आइटम्स के लिए पे करना पड़ेगा, राइट। सो अगर आप कार्ट के थ्रू पे नहीं करते हो तो फिर आपको हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पेमेंट देनी पड़ेगी, तो आपको बार बार पेमेंट डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। तो शॉपिंग कार्ट एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आप इजीली you can pay one time only at the end of the cart when you cart and the products you have added into the cart. Then कार्ट में जाने का ये भी फ़ायदा होता है कि एट लेटर एंड यू कैन रिव्यू ऑल द थिंग्स दैट यू एडेड। उसको एक बार ध्यान से दोबारा भी देख सकते हैं, क्वांटिटी वगैरह चेक कर सकते हो, अमाउंट कितनी बनती है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है, जैसे डिलीवरी चार्जेस वगैरह तो नहीं पड़ रहे। तो कार्ट में जाने से वो डिलीवरी चार्जेस, क्योंकि व्हेन यू बाय द थिंग्स इन बल्क तो डिलीवरी चार्जेस वगैरह वेव ऑफ हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है whenever you go with online shopping. And from the cart you can remove one item or two items also, right? So ये भी एक अच्छा option है। Then whenever you're going for the payment option, always go through the terms and conditions.
पेमेंट ऑप्शन की क्या टर्म्स और कंडीशंस है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए कि पेमेंट अगर आपकी सक्सेसफुल नहीं होती है या फिर हो सकता है कि बीच में लिंक ब्रेक हो जाए, तो लिंक ब्रेक होने से समटाइम वी गेट ए प्रॉब्लम दैट द मनी इज डिटेक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट बट उनको वहाँ पे मनी डिलीवर नहीं हुई। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें पहले टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी चाहिए सो दैट we should know okay what is the next step if you are stuck up like in such conditions and what you are supposed to do, right? Now coming to some of the examples, this you already know, like Flipkart is there, eBay is there, and Flipkart is just generally used for buying only. eBay में आप buying या selling दोनों कर सकते हो, ठीक है? some other sites ये भी .com, Myntra.com, iBibo, Snapdeals, likewise these are all different screenshots of different shopping sites. बिल पेमेंट में मैंने बताया था डेबिट कार्ड से वी कैन पे। डेबिट कार्ड इज योर नॉर्मल एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हो, राइट? कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शंस हैं। वन मोर वे इज ई गिफ्ट वाउचर्स। दीजी ये वही है जो आपको प्रोडक्ट्स परचेज करने के बाद दे जनरली गिव यू सम वाउचर्स, तो वो वाउचर्स को आप यूज़ करके आप जो भी अमाउंट है आपकी उसमें रिडक्शन कर सकते हो, ठीक है? सो दीज आर ऑल, नेट बैंकिंग इज ऑल्सो वन वे ऑफ ट्रांसफर, राइट? यहाँ पे इन्होंने flipkart.com की एक एग्जांपल दी है। अगर आपको flipkart.com से कुछ खरीदना है तो कैसे जाएंगे? पहले ब्राउज़र में जाओ, ओपन flipkart.com विद दिस flipkart.com web address and then just press enter. The web page will open up. Now as you can see this is the web page. इसमें यहाँ राइट साइड में लॉगिन ऑप्शन है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन में जाओ, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो साइन अप में जाओ। साइन अप में जाने के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस और बाकी के क्रेडेंशियल्स भरने पड़ेंगे। आपको एक लॉगिन नेम क्रिएट करना होगा, एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। देन यू क्लिक ऑन साइन अप नाउ ऑप्शन, तो आप रजिस्टर हो जाओगे। देन गो विद द लॉगिन ऑप्शन। लॉगिन में जाके आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था उससे आप लॉगिन कर लो। once you log in you can see access such options also, my account you can see, my orders, my wallet, there must be a figure। ये sign up option है, यहाँ पे आप sign up करो। you can also sign up with the help of Facebook or Google link, right? So this is how we can sign up, we can create your login account, email address, password, repeat is you have to repeat your password again, then click on sign up now, आपका account create हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको राइट टॉप कॉर्नर पे आपने जो नाम दिया है वो नाम विल बी डिस्प्लेड, दैट नेम विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर। कार्ट विल बी विजिबल, ठीक है? ट्रैक ऑर्डर एंड अदर ऑप्शंस विल बी विजिबल नाउ, राइट? as you can see when you click on the name you'll find these all list of options of your account, your orders that you have made, the wallet that you have created, wish list if you have created। wish list वही है आपका कार्ट वाला ऑप्शन। फिर ई बुक्स अगर आपने कुछ परचेज करनी है तो वो आप लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो। रिव्यूज़ और रेटिंग्स, यू कैन गिव योर रिव्यूज़, यू कैन गिव द रेटिंग टू द साइट। so likewise some other options are also there। then you'll find different categories of options on the left side like clothing, footwear, these kind of things। इन कैटेगरीज में आपने जो कुछ भी सर्च करना है वो आप सर्च करो। जैसे यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का उन्होंने ऑप्शन क्लिक किया था, मोबाइल एंड टैबलेट्स का। and you'll find different models over here and then you'll find the options to compare the products। different models of the products are there, you can compare them। comparison में क्या होता है, add to compare option होएगा। उससे क्या होगा कि आप दो तीन मॉडल जो आपको अच्छे लग रहे हैं अलग अलग कंपनीज के, उनके अंदर क्या क्या डिफरेंशिएशन है that you can easily see in comparison view। तो आप कंपेयर करके जो आपको बेस्ट लगता है that you can purchase, right? So once you are done with the product you just go to the payment option after that, ठीक है? जैसे ये नीचे add to cart options है, right?
या कंपेरिजन में जाओगे, ये 3 मॉडल्स अलग अलग हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, प्राइस का क्या डिफरेंस है, डिलीवरी कितने दिनों में होगी, या उनके बाकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं, यू विल फाइंड ऑल ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, so select whichever you want to, like this Motorola some phone has been selected, उसका प्राइस ये है, देन क्लिक ऑन प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर करने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे, उन पेमेंट ऑप्शन में से जो बेस्ट सूटेबल है आपको, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग या कैश ऑन डिलीवरी या ई गिफ्ट वाउचर, इनमें से जो भी ऑप्शन है यू हैव टू सेलेक्ट, and then you make the payment, and then once the payment is made, then whatever things you have done is easily, the order is placed automatically, and जो भी उन्होंने टाइम लिमिट दिया होगा उन टाइम लिमिट के अंदर वो ऑर्डर आपको डिलीवर हो जाएगा, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो ट्रैक योर रिकॉर्ड, जो भी आपने ऑर्डर्स किए उनको ट्रैकिंग कर सकते हो, दैट लेटर ऑन इफ़ यू वांट टू सी कि कितने दिनों में हमारे पास पहुंचेगा वो, या कितना उसका कहाँ तक वो डिलीवर हो चुका है, यू कैन ऑल्सो ट्रैक दैट थिंग, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड। Talking about online courses, tutorials and the tests. ऑनलाइन कोर्सेज आर वेरी हैंडी टूल नाउडेज। जैसे आजकल लॉकडाउन है तो बहुत सारे लोग, जैसे हम भी वही कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। सो वी आर यूजिंग जूम platform. The Zoom platform is also one kind of software used for online tutoring. So likewise, there are various options available on internet from where you can simply join any of the course, or you can use some kind of software for learning as well as teaching, like we people are also using for teaching, right? So ये एक अच्छा benefit है। बहुत सारे अब और भी बेनिफिट हैं, जैसे ऑनलाइन टीचिंग में टाइम लोकेशन जो है वो कन्वीनियंट होती है। अगर आप ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो, इफ़ यू वांट टू लर्न सर्टेन थिंग्स, तो आप सर्च साइट्स पे जाओ, साइट सर्च करो, उन साइट्स में से आप अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हो, राइट। देयर इज नो discrimination of any kind of thing like age, caste, gender, background, nothing is required, right? So tutorials, they are generally available for us, and they are available in the form of audio and video lectures, and then और काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं, काफ़ी इंजॉयबल होते हैं, उससे हमें सीखना जो है बहुत इजी हो जाता है, राइट। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ऑनलाइन कोर्सेज या ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। नाउ ट्यूटोरियल्स जितने आते हैं वो रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शंस, like some are video and slide tutorials where video and slides of the lectures are available, and the learner who want to visit, they can visit the site, they can view the tutorials। एक ये कैटेगरी है। कुछ होते हैं इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल, जहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप नॉट ओनली यू कैन सी द थिंग्स, यू कैन ऑल्सो पुट अ फीडबैक। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी में फीडबैक ऑप्शन नहीं होता, आपको सिंपली स्लाइड मिल गई, वीडियो मिल गया, आपको उसको देखना है और समझना है। The second option is where you can put a query also। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी है वेबिनार्स। वेबिनार्स आर रियल टाइम लेक्चर्स, जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी। तो रियल टाइम में होता है कि एवरीबडी इज ऑनलाइन एट वन टाइम, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, द टीचर कैन गिव यू द आंसर्स ऑन द सेम टाइम, जस्ट लाइक ए नॉर्मल क्लास गोइंग ऑन। तो ये तीन कैटेगरीज की इंटरेक्शन है ट्यूटोरियल्स में, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट what are the sites? There are various sites of online learning: Khan Academy, agetutor.com। ठीक है, खान एकेडमी जो 2006 में इंट्रोड्यूस की गई थी, और इसके अंदर आपको बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे रिलेटेड टू एवरी ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, right? So you can see the video lectures over there, and most of the things are free। बाकी इसमें कुछ पेड ऑप्शंस भी होते हैं, तो जनरल चीज़ें हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, यू कैन गो थ्रू एंड चेक आउट। देन audacity.org, ये भी एक
ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। ऐसे गूगल के कोर्सेज कर सकते हो, AT&T कोर्सेज कर सकते हो। गूगल के कोर्सेज आप गूगल की साइट पे भी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे कोर्सेज हैं। So likewise, many other sites are there. W3 Schools is a very good website. इसमें आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी टॉपिक पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सीक्वल इज ऑल्सो देयर, जावा इज ऑल्सो देयर। जो भी हम पढ़ते हैं वो नॉर्मली आपको यहाँ पे बहुत मिल जाएगा, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। So kindly go through all these things, and we'll definitely discuss about these things later on also. So I think I'll end up here now. तो ये जो जितने टूल्स हैं वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। So that's it from my side today. So if go through the book again, go through some of the online portals also. Maybe people must be doing right now because आजकल तो आपके पास काफ़ी रिसोर्सेज और टाइम है, आप करो घर पे बैठ के। और if you find any kind of problem anywhere, you can straight away call me up, and then we can talk. So from my side, I'm winding up today. So if you have any doubt, you can ask me later, right? Chalo then. Okay, goodbye.